Deepak Nabam and Desai Linggi are two remarkable social workers who are the only ray of hope to hundreds of fragile souls. Hailing from Santo village, Papumpare district, Deepak is a humanitarian and an alcohol survivor. He runs Deepak Nabam Living Home, which shelters about 300 mentally challenged people. He was conferred with the National Award of Senior Citizens Vayu Shrestha Samman 2021 and was nominated for Humanitarian Excellence Awards 2020. Desai Linggi is a social worker who runs Nani Maria Society, a non-governmental organization located in Roing, Lower Dibang Valley. She has been voraciously standing up against many pertinent issues. In 2021, Desai was conferred with a state gold medal on the occasion of 35th Statehood Day and the Women's Achievers Award Arunachal Pradesh for her extraordinary contribution to society. Thank you, Desai ji and Deepak ji, for joining us today in Breakthrough. We're extremely humbled after seeing your story on the TV, especially Desai ji, up all the way from Roing, Ayata. Thank you so much for your time. Both of you have gone through struggles, but in different ways. Like Desai ji, because your parents got divorced when you were still a child, or Apka because of addiction to alcohol. But in spite of all that, both of you become an inspiration for the people, and you have used your struggles for the purpose of the people. तो आप दोनों जब कब realize किया है आप दोनों का calling आदमी लोग को serve करने के लिए कब realize किया है? Desai ji, if you can share your story first. जब मेरा मम्मी और पिताजी का डिवोर्स हुआ तो I was just 6 months old. जब हमको पता चला कि 6-7 years में कि मैं तो क्योंकि mother married somebody else and papa married somebody else. Then when I was with mother, then I was brought up like my mother married a non-tribal like Nepali. So when I was brought up, then I was thinking myself as a Nepali. Then I was talking Nepali. So I can talk very well, very fluent in talking in Nepali. Then afterwards I came to know that I'm not Nepali child, I'm a Idu child. Then afterwards my parents, my father from the court, before going to school, I was brought in the court that whether you will go with the daddy or you with the mommy. And that was like, for me was like which right hand you want or left hand you want, which hand you want. Then for me it was difficult because mommy's place was very struggling part. We had nothing to eat, like we had to sleep hungry. And then I remember now, when we used to get up in the morning next day, I used to struggle to wake up. My whole body used to shiver. Then I used to think I was feeling hungry because there was nothing to eat. Of course, that stepfather, he was trying his level best. He used to cut the woods. And then I had many siblings. So I was looking after everybody like. And how old were you? That time I was 7 to 8 years. Then my father was very rich. He was a mill owner, a sawmill owner. And then he Your biological father? Father, he was very rich. Then I used to see him going by jeep, car, truck and so on. Then people used to tell me, that is your father. But I didn't want to go with him. And then in that house, in my parents' house, mother's house, nothing to eat. Then somebody asked for my mother that I'll take your daughter as a babysitter so that she can work with her in the house. So she sent me. And you were how old? That's 7-8 years old at that, because I was not able to carry this one bartan heavy wala ketli from the I was not able to do. For that, did they pay you? That payment I didn't know. I don't know about that payment system. I don't know, because in my mother's place there was nothing to eat. So that's why I sent others' house. To all the children of Arunachal, that our people, they physically they see you is okay, but emotionally they don't understand. mentally
you are not seeing the child. Yes. That is done by the biological parents also, and done by the to the child labor children also, whoever children may be. For me, is more than the physical, look after the child's emotional and mental well-being. mental welfare, because I went all through that. Yes. So when did you realize that your calling was to serve the people? It was there in my mind from small onwards that parents should, any case, they should not be separate. I remember once one child was crying when parents came. Then parents asked, "You don't like the hostel?" She said no. "You don't like the teachers?" She said no. Then you are missing me? Then she said no. Then why you are crying? Then I came and I said, "Why did you not bring the biscuit?" Child is crying for the biscuit. Not for you, not for the teacher, not for anybody. Because she has got no connection with you now. Because emotionally, physically, Yes. you have Abundant. you are put in the hostel. You may be doing for the good reason for the child, but the child, for the 3 and 4 years old children, now they are only with you is material thing. Yes. You bring the biscuit, she's happy. That's it. So seeing all this and through your own experience that you got a calling to serve the people. So now coming back to Deepakji, can you also share, like, when did you realize that your calling was to serve the people? चौथा से मेरा परिवार से मैं अकेला ही पढ़ने वाला हूँ, तो उस जमान में हॉस्टल में रहा करता था। और हमारी समय में हम लोग कपड़ा पहनने तक नहीं था। हम क्लास 2 से हाफ पैंट पहनना शुरू किया। तो ऐसे हालत को देखकर हमारी ऊपर में एक टीचर, एसएमएस टीचर है, तो क्लास 1 पास होने के बाद टू में ये हालत में मैं पेश किया। तब जब क्लास 2 पास हो गया, वो टीचर मुझे अपना लिया। तो टीचर के साथ मैं बैठकर उनका जो एक कुकमैन की तौर में और कपड़ा धुला देना, बासन बर्तन धुलाना, चाय बनाना, खाना पकाना, ये एक कुकमैन का तौर रोल प्ले किया। और उसके साथ साथ पढ़ाई भी। उन ज़माने में आज की तारीख में जैसे लोग 14 इयर्स का जो ऐसे काम करवाने से ये चाइल्ड लेबर, लेकिन उस समय में हमारे वहाँ पे वो सब अवेयरनेस नहीं था। और उस समय में ये जो चाइल्ड जो लेबर का जो इम्प्लीमेंट वहाँ पे लागू होता तो मैं आज नहीं यहाँ बच के नहीं निकलना था। और मैं चाइल्ड लेबर का जो उसका नियम का खिलाफ नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरे जीवन में जो उस सिचुएशन में सीख के मेहनत करके जो डिसिप्लिन हुआ, मेहनत किया, आज मेरे लिए काम आ गया। और ऐसे अच्छा ही चल के फिर मैं जब हायर सेकेंडरी आ गया और उसके बाद सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, उसके बाद यहाँ कॉलेज पहुँचा। उसके बाद मैं रॉन्ग फ्रेंडशिप, जो गलत आदमी, गलत लड़का लोगों के साथ दोस्त करके मैं पीना उना, अल्कोहलिक एडिक्शन हो गया। और मैं आज आप लोगों का यहाँ ब्रेक थ्रू टॉक शो के बीच में आ पहुँचा, ये भी सौभाग्य सोचता है। तो ऐसे हो के यहाँ कॉलेज में पहुँचते पहुँचते सब बिगाड़ गया। तब आखिर में फाइनली मेरा जो लीवर सिरोसिस हो गया, तब मैं अकेलापन हो गया। मेरे साथ जो पी पा के जितने मेरा अच्छा समय में दोस्त, जिगरी दोस्त, वो सब छोड़ के मुझे चला गया। तब आइसोलेशन हो गया मैं। You were an alcoholic, तो आप किसा उसे आप खूब निकाल सका है? मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा। फाइनली मैं खुद ही बैटलिंग करना पड़ गया। तब अभी मैंने बताया कि मैं अपने ऊपर में रियलाइज हुआ कि मैंने अल्कोहल को दोष किया और अल्कोहल के कारण मेरे जो अभी इमेज, रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, कैरियर सब कुछ मेरा छीन लिया, बिगाड़ गया। निर्णय जो एक विल पावर नहीं, उसको हम अच्छा करना तो खुद रियलाइज करके आप निकाला है। सो प्रोफेशनल हेल्प आपको नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी बोला है, मेरा जो निकलने का पीछे में मेरा अपना जो सफरिंग, अपना जो लोग मुझे सपोर्ट करने को कोई तैयार नहीं है। तब लोगों का अपमान, लोगों का रिजेक्शन, वो मुझे मुझ पर अपने में एक चैलेंजेस,
एक चैलेंजेस बोलने से भी होगा, और दूसरा जो अपने ऊपर में दया लगा, Your willpower in Yeah, your yeah. realization. या तो उसके कारण जब वो हो गया, तब बुक शॉप में बैठकर देखा, जो उस होटल का बगल में जो वेस्ट, And जो डस्टबिन में जो खाना फेंका हुआ को, जो मेंटली चैलेंजेस आदमी वहाँ से उठा के खा रहा, और दोबारा देखा है तो वहाँ पे किसी का दुकान का जो सतार का बगल में सो रहा, दुकान का मालिक आके लाठी लेके भगा रहा। तब वो चीज़ मेरे दिमाग में आ गया और मुझे भी ऐसा ही हुआ था। तब मैं उनको लेकर हमारे वहाँ पे रखने लगा। तो जब ये हो रहा तो तब मुझे मेरे आसपास रिश्तेदार लोग सब पूछा, आप क्यों ये काम करता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये ऐसे मत करो, मुझे बोला। तब मैं उनसे उत्तर जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं अपने बारे में रिकॉल किया, मुझे भी ऐसे ही समाज करके छोड़ा है, और उसका जो तकलीफ परेशानियाँ जो समाज से मिला वही सेम है हमारा रास्ता। दीपक जी, आपका कॉलिंग टू मेंटली चैलेंज पर्सन, जब वो दिखा था, you got the same feeling that you have gone through, that yes, that person exactly. was also going through the same rejection and the same humiliation that you have gone through. Yes. So that's how you realized your calling, that you have to come out to serve the people. अभी हम और यहाँ देसाई जी बोला वाला जैसा, वो 6-7 years होने टाइम में she become a victim of child labor. और हम ये देसाई जी, हम लोग टीम लोग को बात करने टाइम में भी वो बोला है, I cannot stand child labor. तो अभी वो आपका बात एक लेके आएगा। पहला वो समय में आप ये वाला child labor जान के होगा तो आप तो यहाँ नहीं होना था, because that SMS teacher taught you. उधर में काम भी कर रहा था, but that person taught you. तो हम यहाँ देसाई जी का एक बात उधर में आ रहा है, आपका घर में काम करने वाला लोग को एटलीस्ट वो लोग को अपना नाम लिखने के लिए, साइन बोर्ड पढ़ाने के लिए ही तक तो सीखो बोला था। तो लाइक द वे शी सेड, आपको तो सिखाया है, इसलिए आपको नुकसान नहीं हुआ है। आई एम नॉट सपोर्टिंग चाइल्ड लेबर हियर, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। आप बोला जैसा छोटा बच्चा लोग आप लोग को घर में रख रहे तो ये लोग को पढ़ाओ, ये लोग को लिखने के लिए सिखाओ, सो दैट वो लोग इंडिपेंडेंट होने के लिए एक दिन तो। सो कैन यू जस्ट स्ट्रेस अ बिट मोर ऑन दिस पॉइंट? जैसे कि सर बोला है, पहले हमको भी तो दिया, तो चाइल्ड लेबर सोच के नहीं दिया होगा, घर में खानी नहीं था इसलिए मीन्स इतना सारा बच्चा था तो एक ठो दूसरा घर में खा सकता है, ओके, मीन्स भूखा नहीं सोएगा, ओके, दिया। फॉर एग्जांपल सर को भी दीपक सर के साथ में, दीपक सर जो सर के साथ बैठा है वो काम भी लगाया, पढ़ाया भी उनको। तो इन द सेम वे आई ऑल्सो टेल द पीपल दैट कि अभी भी हम लोगों को समाज में जो बच्चों को हाफ टाइम स्कूल भेजो, आप हाफ टाइम आप घर पे बैठा के पढ़ाओ। कोई बोलता है कि इसका घर में तो खाने का 2 टाइम का खाने का नहीं है, मेरा घर में तो हम खिला रहा है, कपड़ा दे रहा है उसको, लेकिन बदले में आप उसको काम भी तो लगा रहा है। तो बदले वो तो बच्चा है, वो तो समझ में नहीं आता है। लेकिन वो कोई बोलता है कि बच्चा स्कूल भेजा था लेकिन नहीं पढ़ के वापस आया। तो आपका बच्चा स्कूल भेजा है, नहीं पढ़ के आया तो आप 2 डांटा लगाएगा, मार के पीट के उनसे भी स्कूल में पहुँचाएगा। आप नहीं बोलेगा कि ये पढ़ ही नहीं रहे, घर तो रख के नहीं देगा। लेकिन आप चाइल्ड लेबर का जो आपके साथ में काम कर रहा है उसको आप बोलता है कि नहीं स्कूल भेजा था, वो खुद भाग के आया, पढ़ेगा ही नहीं बोलता है, क्योंकि उसको सेंस नहीं है, उसको अभी उसको समझ में नहीं आता है कि उसका लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसको समझाना, उसको नरिश करना, उसको आगे ले जाना, पढ़ाना लिखाना, वो आपका काम है। In our previous conversation आप बोल रहा था मम्मी पिताजी लोग फिजिकली दे आर प्रेजेंट, लेकिन इमोशनली मेंटली बच्चा लोग को नहीं समझ पा रहे हैं। एंड दिस इज़ वन इशू विच इज़ वेरी प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी नाउ। आजकल ऐसा हो गया, माँ पिताजी लोग बहुत बिजी है, वो लोग का फिजिकल नीड्स, मटेरियल नीड्स सब देता है, लेकिन इमोशनली मेंटली बच्चा क्या जा रहा है, क्या में खुश रहे, वो लोग नहीं समझ में आता है। सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू इमोशनली मेंटली। अभी जैसे छोटा बच्चा लोग साथ में डील करता है तो हम देखता है कि पेरेंट्स बच्चों को हॉस्टल में पहुंचा के जाता है। तो हॉस्टल में तो आप बार नहीं आ सकता है। सेकेंड सैटरडे को आया आप मिलने के लिए, तो पापा मामा दोनों आओ,
लेकिन हम लोग को समाज में ऐसा हो गया है कि आजकल पापा कहीं और है, मम्मी कहीं और है, और आता है तो बीच में शायद आंटी आएगा, अंकल आएगा, या तो कभी मम्मी आ गया, फॉर एग्जांपल मम्मी आ गया तो मम्मी भी आके बच्चा के साथ वो अपना टाइम बिताने का बजाय फ़ोन में बिजी, वो तो हम लोग भी हो गया आजकल, है ना। सुबह उठते ही हम लोग सबसे पहले हम लोग बच्चा को पकड़ के ऐसे हग करता नहीं ना, सबसे पहले हम लोग फ़ोन ढूंढते हैं, फ़ोन को देखते हैं अपडेट क्या है क्या नहीं है ना, वो देखते हैं हम लोग। वो बच्चा उठाए ना नहीं उठाए, बिस्तर में सुसु किया है कि नहीं किया, वो हम लोग को आजकल वो ध्यान नहीं है। वो बोंटी को बुलाएगा, बच्चा को ले जाओ बाथरूम में सफा करो। मैं नहीं बोल रहा कि मैं भी परफेक्ट हूँ एज अ मदर, आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई एम ऑल्सो नेग्लेक्टिंग माई चाइल्ड इन सो मेनी वेज। जैसे कि होमवर्क आया है तो वो ट्यूशन टीचर को लगा दिया, क्योंकि आजकल तो मम्मी पापा सबका पास पैसा है, सब लोग ट्यूशन टीचर भी अफोर्ड कर सकता है, आया दीदी भी अफोर्ड कर सकता है ना, और स्कूल जाने का वैन भी अफोर्ड कर सकता है। तो हर चीज़, सुबह बच्चा उठा आप फ़ोन में बिजी, ब्रेकफास्ट कंची खिला दिया, वैन आया लेके गया, वापस आया ट्यूशन टीचर का साथ है। आप कब समय दिया बच्चा को? नहीं दे रहा हम लोग बच्चा को समय। इसी वजह से, और आजकल आप लोग खुद भी ध्यान दीजिए, क्या पापा यहाँ बैठा, मम्मी यहाँ बैठा, बेटा यहाँ, बेटी यहाँ, सबके पास एक एक फ़ोन है, सब लोग अपना फ़ोन में बिजी। सोशल मीडिया में जैसे कि हम लोग जैसे कि कैटरीना कैफ में का लाइफ में क्या चल रहा है हम लोग को मालूम है, शाहरुख खान का बेटा का साथ क्या हो रहा है मालूम है, लेकिन अपना बच्चा के साथ हम लोग को घर पे क्या हो रहा है हम लोग को वही मालूम नहीं। इसीलिए sad reality. Are we talking about this mentally challenged topic in one of your conversations? Normal आदमी लोग mentally challenged आदमी लोग को handle नहीं कर सकेगा। अब क्यों वो वाला statement दिया है? जब परिवार जो है ऐसे जो मेंटली चैलेंजेस लोगों को, हर कोई जब मेरे वहाँ पे पहुँचाते बताते कि सर हम लोग चैन से सो नहीं पाता है, चैन से खा नहीं पाता है, चैन से ऑफिस जा नहीं पाता है, चैन से खेती जा नहीं पाता है, किसी का गाड़ी को पत्थर मार देता है, किसी का घर का मकान का शीशा को तोड़ देता है, और आस पड़ोस वाला कंप्लेन करता है आपका ये करता है, हम लोग का बच्चा का डर लगता है। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस लगता है, और उसी को केयर अप करना चाहता होगा लोग, लेकिन चाहने का बावजूद भी कर नहीं पाता है। और इसलिए कि मैं यही बता रहा कि मैं आपके माध्यम से कि हर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, सोशल इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हर कोई बड़े आराम से चाहे जितना भी संख्या हो चला सकता है, क्योंकि उसमें नियम कायदा होता है। जो नियम कायदा को बताने से अपने आप में डिसिप्लिन हो जाएगा। लेकिन जो मेंटली चैलेंजेस है उन लोगों के लिए कोई नियम कायदा से नहीं चलेगा, उसका हर कोई का अपना अपना दुनिया होता है। इस कारण ये चीज़ को अरुणाचल प्रदेश में अभी जो कहीं भी ये मेंटल डिसेबिलिटीज़ को केयर टेकर और सेवा करने वाला कहीं और है क्या पूछेंगे तो मात्र यही है। मैं आपको पूरे दावे के साथ बता सकता है। तब गवर्नमेंट मुझे एक्रेडिट किया और मुझे सर्टिफाइड किया, हाँ दीपक नाबम लिविंग यही ठीक रहेगा। हम लोग का टीम जब आप लोग का लिविंग होप में आकर इंटरेक्ट कर रहा था, देयर वाज वन गर्ल, वो भी अल्कोहल एडिक्शन रिकवरी, वो एक बात बहुत अच्छा से बोला है। जब वो लोग वो अल्कोहल हो एनी काइंड ऑफ एडिक्शन वो लोग छोड़ने टाइम में, वो लोग का विथड्रॉल टाइम में वो लोग का ब्रेन काम नहीं करता है। इन दैट इज द टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड कमिट हो जाता है विथड्रॉल टाइम में। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, क्यों बहुत का घर में है ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, लेकिन माँ पिताजी लोग लोग को कैसा संभाल कर, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम ना मालूम नहीं है, और वो लोग डी एडिक्शन सेंटर में भेज देता है। आफ्टर दैट और कैसा रिहेबिलिट करेगा रिलैप्स नहीं होने के लिए। एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी कैसा करेगा तो ठीक होगा। जो अभी आपने कहा कि विथड्रॉल पीरियड में, विथड्रॉल पीरियड जो है कम से कम 3-4 मान लीजिए कि 1 सप्ताह, उस अंदर में बहुत हरकत होता है और
आपको यही मैं बता रहा, कई बार एक ये जो सोसाइटल जो कहा वो अटेम्प्ट भी किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा वहाँ वॉलंटियर्स लोग ऐसे केसेस को बिल्कुल लगातार उसमें ध्यान देता है। रिकवर के नाम पर 1-2 महीना बीतेगा, रिकवर हो गया। मैं जब खुद लिखते लिखते भी ये तो मैं गलत लिख रहा, मैं समझता, क्योंकि वो लेने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए, अल्कोहल लेने के लिए थोड़ा गैपिंग हुआ। गैपिंग होने से डायरेक्ट हीलिंग नहीं है, तो डायरेक्ट रिकवर नहीं है, तो फिर वहाँ से हम पूरा टोटल रिकवर लिख देगा, फिर बाद में जाके फिर रिलैप्स हो जाता है। We will take a short break. We'll be right back. हम लोग अभी अल्कोहल एडिक्शन का बारे में बात कर रहा था। फॉर अ पर्सन फॉर कंप्लीट रिकवरी सबका इन्वॉल्वमेंट जाए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपका पर्सनली आप कितना सकता है, आप आपका लिविंग होम में मदद करता है, बट वंस दैट पर्सन लिव होम आप फॉलो अप तो नहीं कर सक रहे सबको, तो then the parents involvement comes, the community as a whole और government का involvement ज़रूरत होता है। So in this हम लोग का government भी अलग अलग कैंपेन, वो निशा मुक्त भारत अभियान जैसा और वो ड्रग फ्री अरुणाचल, इस वाला कैंपेन, फ्लैगशिप कैंपेन अलग अलग वो लोग यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। सो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अब कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना नहीं दिखाई दे रहे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, कहीं भी मंच से, कहीं भी प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करके, और इवन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी ये जो नशा मुक्त का बारे में प्रायोरिटी देकर करने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो समाज बचेगा। अदरवाइज हमारे समाज के लिए अभी बहुत एक बड़ा चैलेंज है ये एडिक्शन केसेस जो है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम, हम यहाँ देसाई जी को भी यही पूछने के लिए मानिए, आई थिंक यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट या बॉक्सो का बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का बारे में। तो ही इम्प्लीमेंट कर चाइल्ड विक्टिमाइजेशन को हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर पाए ना नहीं पाए। ये फोक्सो एक्ट आके मैं एक बार बीच में बहुत सारा फोक्सो वाला केसेस हो रहा था, जैसे रोइंग में हुआ, पासीघाट में हुआ, फिर अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर यहाँ ईटानगर में भी कुछ हुआ। तो हमने डायरेक्टर मैडम को फ़ोन करके पूछा, मैम आदमी लोग आजकल क्या हो गया, ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से ये फोक्सो वाला केस ज़्यादा बढ़ गया ना, किस लिए ऐसा हुआ? तो मैम बोला है ये अवेयरनेस के कारण हुआ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस दे रहा है। जैसे कि हम लोग का अभी CWC है डिस्ट्रिक्ट में, DCPO है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, और WCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हम लोग का या ईटानगर से स्टेट लेवल से ही इतना हर डिस्ट्रिक्ट में इतना फोर्स डाला है कि फोक्सो एक्ट के बारे में, जैसे कि चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड लाइन टीम है, 1098 वाला वो वाला टीम है, वो लोग को इतना लगाया है कि प्रेशर की हर एक समय ये अवेयरनेस हो रहा है। तो इसी के कारण बच्चा लोग बोल पा रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अच्छा, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अभी more cases are coming out. In this, I want to come back to your family. आपका बहन भी, when she was small, she became a victim. That also by one of your own family member. Yeah. So you must be going through so many such cases. Yeah. So can you just share with us the difficulty that you face while handling this kind of cases? When we were small, my sister was taken away by my father.
my uncle, and then my father was just roaming around for the business and so on. And I was with my mother. When she was teenage, not even teenage or not even teenage maybe, after 11 years old, she was raped by my own family member. She was not aware तो उसका साथ ऐसा हुआ क्योंकि morning she was bleeding, morning she was getting pain, रात में हुआ. Then she said she didn't know. उसको पता नहीं चला. कितना उम्र था नहीं शायद she was maybe before periods. Then we don't know the exact age, maybe 11 like that. No, it was continually going on because she has nobody to share. ना पिताजी साथ था, ना माँ साथ था. और ये बात को ना पिताजी को मालूम है, ना माँ को मालूम है. जब स्कूल में गया दीदी तो क्लास 5 में या 6 में था दीदी. She was pregnant and she didn't know. All of us we didn't know. And she was in a Catholic St. Mary's convent. And then convent में ऐसा होता है कि सिस्टर लोग का कि and my papa was not reachable. फोन था ही नहीं. लेटर टेलीग्राम डेट से गया होगा. And we were in Assam. तो पापा को वो मैसेज मिलना में देर हो गया. तब तक वो चाइल्ड वॉज ग्रोन अप ऑलरेडी. बेबी वॉज ग्रोन अप अंदर मीन्स ऑलरेडी 3 to 4 months हो गया था. तो अभी हम सोचते हैं कि व्हेन वी आर नाउ ग्रोन अप, व्हेन वी आर नाउ ऑलरेडी अभी इतना एज आ गया कि अभी हमको समझ में आ रहा है कि दीदी कैरेक्टर लूज नहीं था, उसको बनाया गया था. 11 years old कैरेक्टर का बारे में वो टाइम में कैसा ब्लेम करते हैं. व्हाट अबाउट द कल्प्रिट? कल्प्रिट को कुछ नहीं किया गया उस समय में. ना फोक्सो था, ना केस हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ. So the predator was just left like that without taking to justice. For them, so it was like for my family, for other, it was like that. Men will be men. लड़का ऐसे ही होता है, ऐसे ही वाला टाइप का था. And then I was also too small to understand all those things. It was difficult for us to. People think that they were rich, they had money. My father was rich. They had money, they had everything. But in the mind, we had no peace. We had something was there that we missed our mother, we missed our parents. I was 6 months. Then now my mother is mentally challenged because my father and mother was a love marriage. But she has to get divorced with my daddy. My mother speaks about death and she's not well. She's that's why I put so much pressure on my own people. No? When a man does something like marrying somebody else, leaving his wife and children, I write, I talk, I make noise. Then some of them, my own people also scold me. Why do you say in a personal life? I went through all those things. Control that. So I don't want to see anybody like that, your children to be seen like that, your wife to be seen like that. So polygamy and then child labor and then child molestations, I cannot bear. Because all this you have gone through personally with you inside your family. Inside my family, inside my, and then, of course, now if I talk all those things, my family may feel that I am spoiling the family's name. But by saying this, I feel I am helping others. Helping people, helping people to understand. That's why my earnest request is to all the people of Arunachal, to all the people of our beloved people of Arunachal, that don't get divorced. Whatever be the matter, try to sort it out. Try to be a family. Yes. I don't think that polygamy is the worst thing in a answer to your problem. Yeah. Yes. Because in the beginning, when you shared your story, when you were told to choose between your mother and your father, and when you said it was like asking me to choose between the right hand and the left hand, Yeah. that just showed the intensity of the pain that a child has to go through to choose between a mother and a father. Before going to school, I was taken to the court. I don't know what is school, but I knew the court. Your sister, like, she has been mistreated. She has gone through all the shame. And the surprising thing is the man is not brought to justice. So now you're very actively dealing with all this. आपको और भी ये वाला line में कुछ problem? Do you face any problem to bring the culprit to the court or to justice? In the month of January, February, there was a case
The one child is from the childland they had brought the child. So she was working out normally. When the child comes for counseling, we do counseling, but child did not speak up anything. But somebody had gone to the village, and from there the call came that this child has been molested. This child has been raped. So I didn't want to ask because she didn't share with me. So I cannot force. And then my counselor also did not ask. So I took the child to the CWC, Child Welfare Committee, CWC office to ask to the counselor. Then in front of the counselor, child said everything. That she has been done, molested. She has been, from the very young age, she was molested, raped brutally, and then By a stranger or by the employee. And then we did not interfere anything because what the child has to say, she has to say. Only I was behind that, what the authorities does and how they deal it. But Child Welfare Committee, in front of the Child Welfare Committee, they called me and they said, "Will not say this to others. Keep it inside the file." Why? They didn't want to do, I don't know why, but they didn't want to Bring it out in bring the it open. out, open it. In the court, child said that whatever happened to her. But कोर्ट में भी उसका बारे में नहीं लिखा. ओली कब फूटा, मालकिन ने पीटा, उतना ही. तो हमने बच्चे को पूछा, आपने बताया था ये बात? हाँ बताया था बोला. तो जज ने क्यों नहीं लिखा बोला? वो तो मेरा अंकल का दोस्त है. She said like that. Then we came to know that it is not going to work. So then we thought, then it was sent to the session court. Session court में भी क्या हुआ? Judge never met the girl, never asked her what you are feeling, how you are, what happened with you. No, direct gave the order that this girl should be sent to the Pinky Devnath. One girl is there, that rapist का साली का साथ. Then I was like, and then everybody was like, we will not go against the court. कोर्ट का ऑर्डर का अगेंस्ट नहीं जाएगा कोई. Then how it can be? ये तो देखा देखी देख रहा है कि बच्चा का साथ injustice हो रहा है. And she is crying that I don't want to go out of this house. Help me, because this is the second time I'm raped. First when she ran away to the one village. Second time she was brought back. Again this same man is raping me. Again she was not trusting anybody. She used to cry literally. And then the lockdown, 3 months I could not sleep. I had a hair fall. I was not able to sleep because whom to go, whom to say. Then we put in the social media. Then it was in Hindustan Times, and it was in Kathmandu, Arunachal Times. Then everything became hit up. Then I feel if there is for child, if there is nobody to fight for her, if the child is raped, life rape होने से भी उसके लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा. It is very disappointing, very disappointing. Because when the system itself that is going to protect you is not transparent, then whom do you trust? Yeah. Coming back to Deepakji, you said your living home is for the suffering humanity, and you understand the sufferer. Can you elaborate more on that? जो सेवा मेरा करने का पीछे में सिलेक्टिव, जैसे हम लोगों ने बात किया, अल्कोहलिक से पीड़ित, ड्रग से पीड़ित उन लोगों के लिए, या ओल्ड एज के लिए, या अनाथों के लिए, या मेंटली जो चैलेंजेस लोगों के लिए, या फिजिकली चैलेंजेस के लिए, ऐसा मैं सिलेक्टिव आराम से नहीं किया. मैंने ओनली सफरिंग ह्यूमैनिटी, हर किसी का सफ़र होने का पीछे में वेरियस बैकग्राउंड से होता है, अनेक जो फैक्टर्स है उसमें. तो इसलिए मैं मल्टीपल सेवा करके आया, लेकिन अब करते करते फाइनली सेटिंग में आ रहा है जो मेंटली जो चैलेंजेस लोगों के लिए. तो वहाँ पे जो काम मेरे साथ जो अभी कर रहा है, वे लोग वहाँ से रिकवर होने वाला लोग हैं, क्योंकि
बहुत लोगों को अबॉन्डन कर दिया परिवार, और वो अबॉन्डन होने वाला लोग अभी रिकवर होने के बाद कहाँ जाएगा और कहाँ पे वहाँ पे सेटलमेंट, कौन सा बिजनेस में, कौन सा नौकरी में उन लोग का आसानी से इस्टेब्लिशमेंट होना मुश्किल है। तो वे लोग अभी हमारे वहाँ पे रिकवर होने के बाद अभी जो वहाँ पे अपना परिवार का माहौल में, फैमिली इन्वायरमेंट में हम लोग करवाता है। दीपक जी, हम उधर में एक क्वेश्चन पूछने के लिए माने, रिकवर्ड वाला लोग अभी कहाँ जाएगा, इसलिए वो लोग आपको अभी वॉलंटियर कर मदद कर रहे हैं। तो इफ़ वी थिंक अबाउट दैट, वी एज अ फैमिली, वी एज अ सोसाइटी, हैव वी फील्ड बैडली और व्हाट? अभी हम लोग का अपना बच्चा, हम लोग माँ पिताजी लोग को ऐसा लिविंग होम जैसा में हम लोग रख देता है, उसके बाद भूल जाता है हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग टोटली आप लोग को दी कि हम लोग भूल जाता है। बिकॉज बोथ ऑफ यू आप यहाँ में डील करते हैं, तो आप दोनों क्या सोचता है द सोसाइटी एज अ होल, इन फैमिली particularly, हम लोग का अभी along with modernization, हम लोग का एक रोल, हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं ना, कि आप दोनों का व्यूज थोड़ा बोलेगा तो। देसाई मैडम एक बात बताया, जब पापा से उनको प्यार नहीं मिला, उनका दिल टूट चुका है। वो एक्सपीरियंस जब पापा को देख के भी पापा का करीब जा नहीं पाया, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है हमारे यहाँ पे जो रिकवर्ड होने वाला लोग, जो परिवार में, और वापस उन लोगों का भी वही सोच है, वापस जाके क्या करेगा। जिस दिन में ये हालत में था, अभी आपको एक अच्छा उदाहरण है, अभी एक बुजुर्ग जो माँ है, उसको कई बार हम लोग आपका घर में जाइए, आपका रिश्तेदार तो एमएलए है, बड़ा आदमी है, आपका बेटी तो बड़ा आदमी के साथ ये है, तो आप आराम से उधर बैठिए ना, बोलने से मैं नहीं जाना चाहता। कई एक दो बार उन लोग ले भी गया, फिर वापस आ गया। वहाँ में सेंटर में जो प्यार मिला यहाँ नहीं मिलता। तो ये एक जस्ट ब्रीफ एक example is an example that you are not getting the love, the attention from your family. Yes, exactly. उस कारण उससे बेहतर यहाँ जो सर्विस मिल रहा है, परिवार से बढ़कर यहाँ पे जो सपोर्टिंग मिल रहा है, that family feelings, फैमिली फीलिंग्स, जो इन्वायरमेंट, ऐसा फाउंडेशन मजबूती बना दिया। इसलिए यहाँ माहौल जो है फैमिली का इन्वायरमेंट में, परिवार का इन्वायरमेंट है। कोई इधर से आया उधर से आया वो फीलिंग होने नहीं देता है। अभी आपका लिविंग होम में you have got more than 300 residents. So during Corona time, how difficult was it? कोरोना काल में 2019 को हुआ ना, और उस कोरोना का समय में ना हम बाहर जा पाते हैं और बाहर के लोग हमारे वहाँ आ पाता है। उस समय में हमारे वहाँ पे जो होम में जो शेल्टरिंग लेने वाला 102 जन था। तो इतने देर सारे को रेशन दुकानदारी है, कुछ है ही नहीं, सोर्स कहाँ से लेगा। तो उस हालत में जब हम लोग का वहाँ खाने पीने का बिल्कुल अब ख़त्म हो गया, तब मैंने यहाँ का डिप्टी कमिश्नर से फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उतारा है, और किसी ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई से किया, फ़ोन नहीं उतारा, और ये में देने से टीम जो उसका रिलीफ पहुँचाने वाला है बोल रहा है। तब मैं बात में नहीं हो रहा है, तब मैं व्हाट्सएप किया डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन नंबर को ढूंढ के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई। तब जैसे मैंने व्हाट्सएप किया तो तब वो रिप्लाई किया, हाँ पहुंचा रहा है। तब आलू 2-3 बैग ला दिया, और ये दाल और MOL ऐसे कुछ, और सॉल्ट वगैरह थोड़ा कुछ ला दिया, और चावल ऐसे 17-18 बैग जैसा ला दिया। उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेडली एक जो, अरे सर मीडिया आया। तो मेरा कान में पहला बार मीडिया बोला, अरे मीडिया क्या के लिए आया, क्योंकि मेरा सोच है ही नहीं था। तो वो खुद बताया कि नहीं सर, हम लोग यहाँ पे अभी जो कोरोना काल में अभी जो जहाँ तहाँ आदमी लोग प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा मैनेजमेंट क्या हो रहा है, सुना है आपका यहाँ भी आदमी बहुत है, तो इसलिए हम लोग खबर लेने के लिए आया। थोड़ा हम लोग न्यूज़ ले रहा है, ब्रीफिंग तो होगा ले लीजिए, हम बोला।
तो फिर वो पूछा, मीडिया वाला बोला कि सर आपको इंटरव्यू लेगा। अरे क्या इंटरव्यू लेना, आप खुद देख लिया। मैं ऐसे मतलब क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट को मुझे भी मालूम नहीं था, इसलिए तब मालूम नहीं, तब बोला कि होगा, पूछना पूछिए बोला। तब ऐसे सिटिंग बैठा के पूछा है, तब पूरा चप्पे चप्पे पूरा ये वीडियो करके ले गया। और बाद में पता चला, तो मीडिया को कहाँ से आया वो भी मालूम नहीं, बाद में पता चला है ये कैपिटल न्यूज़ CDCN। तो ये उधर से मुझे मीडिया का जो एक इम्पोर्टेंट, जो हम लोग का जैसा जो वहाँ का जो रोगी जो पीड़ित लोग हैं, जिसका वॉइस लेस है, उनके लिए वॉइस आवाज़ उठा दिया। तो ये एक सोर्स ऑफ हम लोगों का एक सांस, जैसे अस्पताल में कोई आदमी मरने जा रहा है तब ऑक्सीजन डालता है, ये CDCN जो चैनल जो मीडिया आकर बहुत उस समय में हमारे लिए एंजल जैसा हो गया। हमारे कंपाउंड के, हमारे मैडम के लोग, तब पब्लिक लोग उस मीडिया का जब कवरेज होने के बाद, तब पब्लिक का भी पूरा प्लाडेड, मतलब पब्लिक पूरा सपोर्टिंग करने लगा, राशन पानी। तो ऐसे ही करके कोरोना काल में कुछ तकलीफ होने नहीं दिया। ये मीडिया का कंट्रीब्यूशन है। मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी देसाई जी भी बोला जैसा थ्रू मीडिया और आउटसाइड एजेंसी से मालूम होकर मदद किया है ना, जस्टिस मिला है। इसलिए हम लोग बहुत पॉजिटिव रोल, और वॉइसलेस वाला लोग को हम लोग वॉइस दे सक रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टॉकिंग अबाउट सपोर्ट, आप दोनों भी बोथ ऑफ यू आर मैरिड, आप दोनों का स्पाउसेस का रोल, ये लोग का सपोर्ट किसा दिया है और ये लोग का रोल्स कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी आपसे लेके थोड़ा बोलेगा तो अच्छा है। थैंक यू मैम। मैं अपने हस्बैंड के बारे में ना कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, बोला भी नहीं है, लेकिन मेरा सोसाइटी के लिए या मेरा ग्रोथ के लिए मेरा हस्बैंड का रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आई रिमेंबर वंस कि हम लोग का फैमिली ऐसा चलाने के लिए भी मुश्किल हो गया। मीन्स पैसा भी नहीं था, तो मेरा हस्बैंड का सबसे पसंदीदा बाइक पल्सर था उसका, वो सेल कर दिए ताकि हम लोग फैमिली चला सके। और ही इज़ ऑलवेज देयर सपोर्टिंग मी, मीन्स हर छोटा छोटा चीज़ के लिए, हर छोटा छोटा चीज़ के लिए। जैसे कि आगे अगर हम सो रहा हो तो वो जगाएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि हम थक जाता है दिन भर काम हो के, वो जगाएगा नहीं। और जैसे कि फ़ोन ड्रेन आउट हो गया मेरा, तो मेरा ध्यान नहीं रहा, वो फ़ोन रिचार्ज कर देगा। और बच्चों को खाना खिलाना है, अगर कपड़ा वपड़ा थोड़ा इधर उधर रहेगा वो देख देगा, और दीदी लोगों को खाना उना के लिए देख देगा। मीन्स छोटा छोटा रोल हमेशा वो प्ले करता है। और फाइनेंशियली भी अगर हमको थोड़ा तकलीफ़ हुआ, अगर उसको बोलेगा कि हमको मदद चाहिए, बोलने से भी वो निकाल के भी देगा, मदद भी करेगा। एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन ऑल वेज, ऑल द वेज। अगर लकड़ी ख़त्म हो गया, वो खुद जाएगा जंगल लकड़ी लेने के लिए। ग्राउंड में घास उग गया, वो खुद काट देगा घास के लिए। राशन ख़त्म हो गया, ट्रक लेके खुद राशन ला देगा। मीन्स ही इज़ ऑलवेज देयर फिजिकली, इमोशनली टू सपोर्ट मी। तो उनके वजह से भी हम, और इतना दूर आया है, अगर हमको ईटानगर जाना है, दिल्ली जाना है, कल को कुछ जाना है, कहीं जाना है, वो बोलेगा बच्चा हम देख देगा, आप जाके आ जाओ। तो वो हर जगह से सपोर्ट करता है। इसी का वजह से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो हम नहीं कर पाता। दीपक जी आपका भी। अभी जो मैडम मिसेस के बारे में बोला, मैं मिसेस का पति पत्नी का रूप में ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। मैं उसको अपना माँ जैसा समझता, क्योंकि वो माँ का रोल प्ले करता है। जैसे माँ अपने बच्चे का प्रति प्यार करता है, और उसका सपोर्टिंग बिना तो ये काम भी तो नहीं कर पाएगा। और ये काम को मैं ऑब्लिगेशन करना ही बोल के नहीं करता है, प्यार से। ये प्यार से अपना काम, मतलब एक ड्यूटी बन के हम नहीं करता है। मेरा ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगा, लोग चाहे याद करे या ना करे, लेकिन दुनिया में मैं एक अच्छा काम करके जाएगा। और वो अच्छा मैं बहुत बड़ा किया, वो दावा नहीं करा, लेकिन अपने लेवल में अपने पास जो है लोगों का प्रति प्यार बांटना है, वो चीज़ को अभी तक करके आ रहा। यहाँ अरुणाचल में आप जैसा अल्कोहलिक रिकवरी वाला लोग भी बहुत है, और यहाँ देसाई जी जैसा ब्रोकन फैमिली से आने वाला लोग भी बहुत है। लेकिन
दूसरा लोग तो आप दोनों अभी क्या काम कर रहे हैं, सब लोग तो नहीं करते हैं। आप दोनों का लाइफ, आप लोग का फैमिली एज अ टीम, आप लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं। लेकिन सोसाइटी और फैमिली सब लोग तो सेम नहीं है। आप लोग कितना अच्छा काम करेगा भी नेगेटिव बोलने वाला भी होता है। तो आप दोनों का लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस आकर डिस्करेजमेंट भी मिला है ना कि? हाँ, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि किसी ने मुझे बुलाया कि आप तो इतना गंदा काम करते हैं आप तो इतना गंदा काम करता है कि रेप विक्टिम हो गया और चाइल्ड लेबर हो गया, जिसका तिसका बच्चा उठा के रखता है, कमाने के लिए भी ऐसा काम होता है क्या सब कुछ। तो हम बोले गंदा काम हम नहीं करते, जो गंदा कर रहा है उसको हम साफ कर रहे हैं। जो सोसाइटी में जो चाइल्ड लेबर ना, एक छोटे से बच्चे को लेके चाइल्ड लेबर लगा कर रखा है, उसके साथ रेप होता है, और कितना तो रिकॉर्ड में भी नहीं है, कितना को तो छुपाया गया है ना। वो काम हम कर रहे हैं ना, हम सोसाइटी को सफ़ा करने के लिए कर रहे हैं, और हमको उस वे में भी देखता है कि हम इसका थ्रू पैसा कमा रहे हैं। और सोसाइटी वाला हाँ आज हमको नहीं समझता है, कल समझेगा होगा, कल परसों समझेगा होगा। अभी तो स्लोली वो लोग आ रहा है। तो अभी हम बोलते हैं पेरेंट्स को भी ना, आप लोग अपना घर में बच्चा बर्थडे पार्टी मनाता है, तो आपका बच्चा अभी 1 साल से लेके 18 ईयर्स तक मनाएगा, तो कितना साल घर में मनाएगा। एक बार तो ऑर्फनेज में मना लो, आपका बच्चा को भी सिखाओ, दिखाओ कि देयर आर ऑर्फनेज, देयर आर विदाउट पेरेंट्स, देयर आर चाइल्ड लेबर्स, है ना। आपको पढ़ना है, लिखना है, ये लोग के लिए भी काम करना है। आपको अपना लाइफ में भी ऐसा चाइल्ड लेबर नहीं रखना है, किसी को मार पीटना ऐसा करना नहीं है। हाँ, वो सिखाओ, और बच्चा को सिखाओ कि देने के लिए भी ना, सिर्फ लेने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए भी सिखाओ। आजकल आता है आदमी लोग, आजकल धीरे 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 होते जा रहा है। और हाँ, पॉजिटिव है, बैंक बैलेंस नील है, फिर भी दिल में एकदम बड़ा है, दिल तो बहुत बड़ा है। और पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि दिस वर्क वॉज फॉर मी ओनली ना, और ये काम करके हमको एकदम खुश है। दीपक जी, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस? जी, अभी मैम जैसे कहा है, तो ऐसे मेरे साथ भी कभी कभी ऐसे चैलेंज बहुत आया। कभी कभी क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया में कोई इंडिविजुअल ऐसे आता है, तब उन लोगों को जब आता है तो कहते अरे ये मैं कौन सा गुनाह किया है। अच्छा काम करने में अगर उनके लिए बुराई है, तो हमारा बाइबल में एक ऐसा कहा है कि आदमी जब कान हाथ पैर सब, इंसान तो इंसान है, लेकिन अंदर में जो है, जिस किसी का मन में हृदय मन सुंदर है वो सुंदर बात निकालेगा। जिस किसी का मन में कुरेलती है, नफरत है, कड़वाहट है, हिंसा है, जैसे ये पानी, ये बोतल जो है उसमें गंदा पानी होगा तो निकालेगा तो गंदा पानी निकलेगा, और प्योर जो पानी फिल्टर पानी है तो वो सुंदर पानी निकलेगा। आदमी का भी मन में, जिसका मन में बुराई चीज़ को स्टॉक करकेगा, उससे आप अच्छा उम्मीद मत कीजिए, वो बुराई बातें करेगा। तो इसलिए कि हम लोगों का सेवा करने का सपन बहुत लोग उससे करके खा रहा है, ये हो रहा है, बोलने वाला होता है। लेकिन उन लोगों से मेरा यही बात है कि अच्छाई और बुराई समाज में मिला हुआ है। तो आपका घर में कभी एक कप भी ऐसे व्यक्ति को, सड़क में घूमता हुआ को लेकर चाय पिला के देखिए ना, तब आप बोलिए ना, नहीं तो दूसरों का ऊपर में नज़र लगा के बोलने से क्या फ़ायदा। आप दोनों का बहुत स्ट्रगल भी, यू हैव गॉन थ्रू स्ट्रगल, यू हैव गॉन थ्रू पेन ना, रिजेक्शन भी यू हैव गॉन थ्रू दैट, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आप दोनों अभी गुड फ्रेग्रेंस आप दोनों का से ना, थ्रू यू, थ्रू बोथ ऑफ यू, इतना आदमी लोग को आप लोग होप दे रहे हैं, इतना आदमी लोग को आप लोग मदद कर रहे हैं। Thank you so much. We had a wonderful conversation, and I'm sure our viewers also must have learned lots through this conversation. But before we go, our team, we have made a small hamper for both of you. यहाँ में हम लोग local products से है, he खमदी से from अरुणाचल spices लोग खमदी चावल है, spices है, और यहाँ में हम लोग का E&Ks का कुकीज़ ब्राउनी से, देन पुडिंग टी है, और यहाँ एक पोस्ट कार्ड है हम लोग का ऑल रिनाउंड लोकल आर्टिस्ट ओकेन से बनाने वाला। तो देसाई जी को फर्स्ट, ठीक है? थैंक यू। So thank you, ma'am.